biggest reason of my failure was I was not receptive. सीखने की खिड़की बंद थी कि अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, you know, and you cannot accept things the way it is and grow with them, learn with them, then you don't have a growth mindset. आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे कभी नहीं बिकेगा, आप स्टोरी बेचने जाओगे हमेशा बिक जाएगी. मेरे मन में आता था, वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती थी कि अच्छा एक और खड़ा हो गया पॉडकास्ट करने वाला. सी ह्यूमन बीइंग इज I would say is a very very self-centered animal. Hello everyone, welcome to the new episode of Be Podcaster. In this episode we have Mrs. Rashi Khanna, an entrepreneur and a successful podcaster with us who is having above 2500 episodes on Spotify. In this episode, we will be talking about podcasting and other aspects of life. So let's get started. Hi, Ms. Rashi. Welcome to Be Podcaster. Thank you, Shambhavi. I'm so thankful to you that you came over for this. Thank you. How are you? I'm very well. Great. So before we start our today's episode, I would like to ask one question that you are also a podcaster. You also started podcast doing far back, almost 5 years now? Yeah, 5 years. So how you started your journey? At that time, there were very less people in podcast, right? Even nobody was aware that podcast industry is gonna hit so hard. But now it is. Yeah. And you started so early. So how does it happen? So honestly, there were some life events that actually, God pushed me into it. I would say it was God sent. We started making videos when COVID hadn't started. And I went through some very different life changes, some personal changes, because of which I was forced to start my work online. And online was something which was not in at that time. And then COVID struck. And, I think everything was happening for me at that time. I felt, and we got into podcasting. And today we survive because we were passionate about it. And honestly, we started with video podcasting. And slowly what happened that I realized that people are scared to face the camera. सब लोग कैमरा में बात नहीं कर पाते हैं. So we thought that let's do something where we can help people, unleash their thoughts, unleash their ideas. And we got into audio format. And that is right after a year of my video podcasting that we got into audio. After getting into audio podcasting, I realized people can't even talk. Because we are a big network of, professionals, business houses, poets, writers, and कुछ लोग लिख पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं कविता. So we thought that, okay, let's do something. Let's get into a digital magazine. अब आप देख नहीं सकते हो कैमरा में, बोल नहीं सकते हो, लिख तो सकते हो. So that is how my journey started. And today we are India's first who launched 5 minutes episodic podcasts. And I think we are doing great in that field. That's amazing. Your podcasts are on Spotify, right? We are on all the music channels and we are also on all the social media. Amazing. So when it comes to Spotify, there are a lot of people who are not aware that how to put on that, right? How to use Spotify to grow your network, to grow your podcasts or episodes, right? So if you can put some light on that how people can get started with music channels or Spotify kind of platforms for their podcasts. Okay, so Shambhavi, see, all these hosting platforms have inbuilt systems, technology where you can just go and make your podcast on their hosting platform. So, for example, if you go to Spotify, then Spotify also has a, you have to make your account and then upload your file and you're there. It's not that complicated. It's like using social media. It's like how you upload your music song. It's the same way you upload your podcast. So if you have to just go into that application and do it. Right. So, आपने last 5 years you are doing the podcast and you met almost thousands of entrepreneurs till now, if I am not wrong. Yes. Okay. So, जो अभी तक आपने entrepreneurs के साथ जो podcast करी है, तो आपका जो experience रहा है उनके साथ, चाहे वो audio podcast में हो या video podcast में हो, right? या magazine के through हो, तो what would you like to say about that? See, honestly, I feel that anyone who's doing
honestly, I feel that anyone who's doing a business is a storyteller. अगर आप चाहते हो आपका business चले, तो आपको एक story, वीव करनी पड़ेगी. तभी आप अपना प्रोडक्ट बेच पाते हो. Over I think over 5 years, I've interviewed, I've spoken to, I've written about so many entrepreneurs, SMEs, women entrepreneurs, startup founders, and I've realized that most of them either are not aware how to weave a story, and if they know, then they do it really well. इसका कोई बीच का रास्ता मुझे कभी नहीं दिखा. या तो उनको पता नहीं है कि वो क्या बेच रहे हैं और कैसे बेचना चाहते हैं, या उन्हें एग्जैक्टली पता है कि वो क्या बेच रहे हैं और कैसे बेचेंगे. सो देयर इज नो मिडिल पाथ. हमारा काम ये होता है कि अगर तो आपको नहीं पता है कि आपको कैसे बेचना है, तो हम सिखाते हैं. ठीक है, दैट इज माई कंपनी, क्या मतलब नेटवर्क. और अगर आपको पता है कि आप कैसे बेचोगे, तो हम आपकी हेल्प करते हैं उसको बेचने में. सो वी मेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम दोनों जगह फिट होते हैं. So do you think कि podcast is a new kind of marketing? Podcast is definitely one of the best marketing tools these days because honestly, it weaves around a story. Secondly, you are connecting with your audience one-on-one. If you're a brand, today I feel, rather than doing any other marketing exercise, I think you should have a podcast. And we, as a brand, have produced many podcasts for many, many brands. So it is definitely a very upcoming and it is there in the market. And before podcast, like before starting into podcast, आप उससे पहले क्या करते थे? So I am from an advertising world and I've worked into the forums of MSMEs and SMEs, and I have been an outdoor media person all my life, and I'm a hardcore salesperson, and I think that's it. Okay, so as you said that you're a salesperson, now you're a podcaster. So when it comes to sales, people feel that sales is something कि बस एक job है, right? But what I personally feel is that doesn't matter if you're a finance person, if you're a HR person, if you're into any domain, you will be selling anything. कुछ ना कुछ तो आप बेच ही रहे हो. अगर आप CEO भी हो, then also you are selling. अगर आप finance वाले हो तो भी sell कर रहे हो, HR हो तो भी sell कर रहे हो, right? And अभी आपने कहा कि आप एक sales enthusiast रहे हो और पहले अभी भी आप हो उसमें, right? तो what are your points about sales? See, again, I feel anybody who can weave a great story is a great salesman. Okay, आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे कभी नहीं बिकेगा, आप स्टोरी बेचने जाओगे हमेशा बिक जाएगी. तो सेल्स की सबसे बढ़िया टेक्निक होती है कि जो खरीदने वाला होता है उसके दिमाग में वो स्टोरी छप जाए. ठीक है, आप किसी को बोलोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई करके देखो. ऑनेस्टली नोबडी वांट्स टू ट्राई. लेकिन आप किसी को बोलोगे ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को आप ऐसे यूज करोगे, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है, वो हमेशा उसको ट्राई करके देख के उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा. सी ह्यूमन बीइंग इज I would say is a very very self-centered animal. उसको अपने से ज़्यादा कुछ और समझ में नहीं आता है अगर आप इंसानों की बातें करो. तो मुझे लगता है सेल्स की the right kind of technique is weaving a story around it, and it's very easy to sell a story than a product. True. So this has been my experience, and honestly, Shambhavi, over the years, I've been working for more than 28 years now, and till date, I sell my story to sell a product. Very, like, truly. So now, as you are a woman with a kid and you're running your even podcast very well, तो घर फैमिली सब कुछ मैनेज करना एक वुमेन के लिए कहीं ना कहीं लाइक आफ्टर मैरिज बहुत चैलेंजिंग होता है, राइट? व्हेन यू हैव अ बेबी और उसमें खुद को मेंटेन करके रखना, खुद को फिजिकली मेंटली हर तरीके से रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? तो हाउ यू डिड दैट? See, honestly, when I'm from a very, very, I would say a typical business family, and I got married into a business family due to some life changes. There were many changes in my life, and I have undergone and experienced a lot of different kind of, perspectives and different kind of, experiences in my life. एक चीज हमेशा consistent थी मेरी जिंदगी में, वो थी मेहनत. I've never shied away from doing
a lot of hard work, and till date I believe into this. So I think that was one thing that helped me come up to here. Secondly, मुझे लगता है जो चीज़ अच्छी दिखती है वो जल्दी से बिक भी जाती है, ठीक है, वेदर उसकी इतनी क्वालिटी, पर मुझे लगता है अच्छी चीज़ें जो दिखती हैं वो अच्छी होती भी हैं, यू कांट से कि वो बुरी होती हैं. तो मैंने हमेशा देखा है कि अगर आप अच्छे दिखते हो और प्रेजेंटेबल दिखते हो और आपका ऑरा क्लीन लगता है, आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो और आप क्लियर हार्टेड हो, तो दिस नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो आपको रोक सकता है. सो मैं कुछ अपने लाइफ के मंत्रास को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ. एंड व्हाट वाज दैट? एंड वन ऑफ द मंत्रास इज दैट मैं कभी गलती करना पसंद नहीं करती. पहले आई एम वेरी रेसिप्रोकेटिव. कोई आगे से गलती करता है तो मैं उसको जवाब देना ज़रूर पसंद करती हूँ, लेकिन अगर आप कभी नहीं देखोगे मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी में कि मैं खुद कभी जाके किसी के साथ गलत करी हूँ. आई नेवर डू दैट, नेवर. सो ये एक मंत्र. आई बिलीव इन कर्मा. I believe in totally karma, and I believe that all the karmic activities are recorded somewhere, and I have to be clean in my karma. I always believe that. And one more thing, Shambhavi, over the years I've realized कि अगर आप सच्चे हो तो जिंदगी को दुनिया में लगेगा कि आप लॉस में हो, पर ऐसा कभी नहीं होता. अगर आप सच्चे हो तो जिंदगी आपको सच्ची देगी. लास्ट में तो आप जीतोगे. So you have to be patient. That's all. आप लखनऊ से हैं ना? मैं लखनऊ से हूँ. तो like in which year you left Lucknow and moved to Delhi NCR? So I got married in 2000, and that was the big change. I came to Delhi from Lucknow, and there was a very, very different atmosphere in my sasural, and I've been brought up, and my entire upbringing has been very, very different in Lucknow. I'm from a very outgoing family, and I came into a very conservative family. But honestly, my biggest life support is my husband. उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि ये मत करो, ऐसे मत करो. And he's also a media guy, and उन्होंने हमेशा मेरे को बोला है कि करके देखो. एंड बट देखो, फैमिली की मर्यादाएं होती हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो परिवार और परिवार की मर्यादाएं ज़रूर फॉलो करनी चाहिए. तो आफ्टर मैरिज, शादी कर, लाइक व्हेन यू मूव्ड फ्रॉम लखनऊ टू योर फैमिली, लाइक न्यू फैमिली, तो वहाँ पे आपको काम करना वाज अलाउड और नॉट? या दैट मीन्स माई इन-लॉज आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी गुड, एंड कभी मना नहीं किया. बट ऑनेस्टली मुझे लगता है इफ यू आर फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी एंड यू कम टू अ बिगर सिटी, द ओनली चैलेंज इज टू गेट कॉन्टैक्ट्स एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी स्टूडेंट के लिए भी. अगर वो एक छोटे से शहर से बड़े शहर में आता है तो उसको फ्रेंड्स बनाने में, उसको बहुत जल्दी एक्सपोजर ग्रहण करने में थोड़ा सा समय लगता है. दिस इज माई एक्सपीरियंस. सो आई थिंक दैट वाज द ओनली हिच. अदरवाइज लाइफ हैज़ बिन रियली काइंड, गॉड हैज़ बिन रियली काइंड. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ ऐसा हुआ, बट सब सपोर्टिव थे. एंड यू टुक अ करियर गैप एज वेल. Yeah, I was on a sabbatical for a while. Due to my own illness also, and this jump that I had before getting into podcasting was a bigger one. And but yes, I think gaps are good because जो चीज़ आप थोड़ा स्टाफ करके करते हो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी निकल के आती है. And आपने कभी बताया था that you were in some sort of depression as well because you were away from your work and all. Yeah. Right? तो कहीं ना कहीं mental health was affected yours, right? Yes. So how did you know that? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं होता कि whether they are in depression or Yes. whether. तो आपको कैसे पता चला कि हाँ you are in depression? I think to tell you a good news is that I have just finished my lay counseling course from NIMHANS Bangalore, and I'm a qualified lay counselor now. Why I did this? Because when I was undergoing that period of depression, and I could just see darkness around me. मुझे लगता था मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा शायद. एंड वो बहुत लंबा पीरियड था, 1-1.5 साल, जिसमें आई हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, एंड आई हैड नो ऑनेस्टली आई हैड नो सनशाइन इन माई लाइफ. दैट टाइम द ओनली थिंग दैट हेल्प मी वॉज प्रेइंग.
एक चीज मैंने हमेशा करी कि मैं अपने प्रेयर करती थी कि भगवान कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे कभी. एंड आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो, आई वॉज अंडर मेडिकेशन ऑल्सो. ट्रस्ट मी शांभवी, अगर आपका दिल साफ है और वाकई में आपको कोई तकलीफ आई है, कोई ना कोई परमात्मा रास्ता जरूर दिखाता है. एंड बिलीव मी, आई हैड दैट फ्रेंड, वन फ्रेंड ऑफ माइन हु केम ऑल द वे फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, सेलम. वो वहां से आई थी, मेरे घर में रही, और उसने जब मेरी हालत देखी तो शी जस्ट पुल्ड मी आउट. उसने फोर्सफुली मुझे एक जिम ज्वाइन कराया, उसने फोर्सफुली मेरा वार्डरोब चेंज कराया, उसने बोला कि इससे बाहर निकलो. I actually got a hand that pulled me out of it. And then there was no looking back. I got back to my job. I started exercising. उसने मुझे diet join कराया. This is way back in 2007. Long, तब तो वो diet का इतना concept भी नहीं था कि कोई diet ले. And उसने मेरे को join कराया. And I started looking, धीरे धीरे when I started looking good, and I started, I got back to my work. लोगों से encouragement नहीं मिलता था, but something I pulled myself, and my of course my psychotherapist, my doctors were there, and my husband, my family, always very supportive. मेरे parents, मेरे brothers. So I was out of it, and I think today I feel that anyone can fight it if you give support to those such kind of people who are going through real bad mental space. They just need little help. And I think they come back to life. ये हमारी कमी होती है, आसपास के लोगों की कमी होती है कि वो शायद समझ नहीं पाते कि इनको जरूरत है. True. वो उनको कोसते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, अभी मेरे को एक, आई वुड लाइक टू शेयर दिस, मेरे को अभी एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ हमारे ही परिवार में. वी हैड दिस पर्सन, वी जस्ट लॉस्ट हिम कपल ऑफ मंथ्स बैक. उसने अपनी सारी लाइफ हमेशा खुशी से बिताई. इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. एंड वो कभी भी सोशल स्ट्रक्चर में नहीं बैठा कि वो अगर शादी है तो जानी ही जानी है, स्किप कर जाता था. और हम लोग सब उसको डांटते रहते थे कि सोसाइटी के कुछ तो नॉर्म्स होते हैं, उसको तो फॉलो करो कम से कम. टुडे व्हेन ही इज नॉट देयर, वी रियलाइज्ड कि उसने अपनी जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से बिताई, अपने तरीके से बिना किसी को तंग करे. अपने जीवन की यात्रा उसने बहुत अच्छी करी. एंड आई फील इफ यू आर फोकस्ड, you have great work, you have a loving family, you have food on your table. इससे बड़ी blessing इस जीवन में कुछ नहीं है. कोई चीज नहीं. And if you get clean clothes to wear, if you have water to drink, I think these are very small things, but they are really valuable things. True. जैसे आपने अभी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसकी बात करी, तो do you really think कि जो अभी तक जो चलता आया है कि अगर कोई बच्चा है तो वो इस तरीके से ही चीज़ें अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा, इस तरीके से स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, 10th करेगा, फिर 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो नॉर्मली जॉब में जाएगा, फिर कुछ टाइम जॉब करेगा, शादी करेगा, बच्चे, ये जो एक नॉर्मल अभी तक चलता आया है, जो ट्रेडिशनल अभी तक आया है. तो डू यू रियली थिंक कि अगले आने वाले टाइम में भी या फिर अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो डू यू थिंक कि अभी भी वही कल्चर चलता आ रहा है या फिर कल्चर चेंज होने वाला है या फिर हो रहा है? See, if we talk about our country, okay, कुछ संस्कार इस देश के कभी नहीं बदलेंगे. ठीक है, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल दैट वेज, एंड आई पर्सनली फील दैट दुनिया को दुनिया के तरीके से जीना चाहिए. हर किसी में नहीं होती है शक्ति दुनिया से लड़ने की. एंड इफ यू डोंट हैव दैट पावर टू फेस द वर्ल्ड, देन यू फॉलो व्हाट द वर्ल्ड हैज लेड फॉर यू. जरूरी नहीं है कि आप 30 मार खां बने और आप लड़ने चले जाएं और आप अपना रास्ता बनाएं. नॉट एवरीबडी हैज दैट पावर, ऑनेस्टली आई फील. सो बहुत कुछ बदल रहा है. इफ यू टॉक अबाउट पॉडकास्टिंग, देखो पहले लोग इसको सिर्फ हॉबी समझते थे कि टाइम पास करें. टुडे इट इज अ प्योर बिजनेस. This is a pure, I think, the core business, podcasting these days. Times have changed. Same way if you talk about social life, family life, everything is changing. But core वैसा ही रहेगा जो हमारे देश के संस्कार है. Core will still बहुत साल लगेंगे टूटा चेंज होने में. बट जो कोर है ना हमारे अंदर, जो एक बड़ों के लिए संस्कार, जो इफ यू टॉक अबाउट मेन एंड विमेन, हाँ इट्स गुड, इट्स वेरी गुड टू से कि हाँ हमारे लड़के भी सारा घर का काम जानते हैं. बट ऑनेस्टली बच्चे को माँ ही चाहिए होती है इनिशियली. फर्स्ट
ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स देयर आर लविंग फादर्स, देयर आर हेल्पफुल फादर्स, लेकिन आज भी अगर मैं 47 ईयर्स की हूँ, मेरा बेटा अगर 23 साल का है, तो उसको सबसे पहले मम्मी का फोन चाहिए, यू नो, कि मम्मी मेरी बात समझ जाएंगी. एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, यू नो. बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे हाँ बच्चे सबसे पहले फादर को फोन करते हैं. सबसे पहले आज कोई भी हो, सबसे पहले माँ को फोन करेंगे. सो ये हमारे देश के संस्कार है. एंड these are the values we live by, you know. So मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी चेंज होगा. बिल्कुल. So now coming back to podcast, as I'm doing podcast, you're doing podcast. So as per you, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में ज़्यादा है एंड आपने अभी तक ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा पॉडकास्ट लाइक 2500 अप्रॉक्सीमेट एपिसोड्स आपने करे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्ट एंड हाउ इट इज़ गोना लाइक change the marketing even for brands, for person? How is it going to change? So honestly Shambhavi, this is a very interesting question. मैं एक बहुत ही दिल की बात बताती हूँ. पहले क्या होता था, आज से around 2 years back or something, किसी को पॉडकास्ट करते हुए मैं देखती थी तो मेरे दिल में आता था कि अच्छा ये भी कर रहे हैं, you know. It's फिर बीच में एक ऐसा फेज आया when I used to see a new podcast channel, yeah, somebody who's come up with a great podcast, you know, a new podcast, I used to feel, why are they doing this? Why are they filling the market like that? You know, मेरे मन में आता था, you know, वो competitive feeling आती थी कि अच्छा एक और खड़ा हो गया podcast करने वाला, you know. Honestly, down the line today, my mindset is that everybody should podcast. Okay, so at that time, क्योंकि आपने शुरू किया था, तो experience was a bit less in this industry and you were somewhere I was also learning, honestly. I was learning, yes. And a kind of insecurity was there? No, not at that time. In middle, when, you know, honestly, what happens when you have a total grab, you know, you have your total concentration on a subject and you feel that you're mastering it, तो वो competitive feeling natural होती है सबके लिए. स्कूल में भी ऐसे ही होता है. अगर आप मैथ्स में अच्छे हो और आपके साथ कोई दूसरा भी आ जाएगा जो मैथ्स के 2 क्वेश्चंस बता देगा डिफिकल्ट वाले, तो आपको लगेगा ये तो यार मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं. तो पॉडकास्ट में हर प्रोफेशन में ऐसे ही होता है. वो बीच का एक फेज था. बाद में अब तो मुझे लगता है एवरी पर्सन शुड पॉडकास्ट. हमारी तो टैगलाइन ही है कि पॉडकास्टिंग, तो कोई बात ही नहीं है. एंड आई टेल यू, यू नो, हमने जब क्या मतलब बनाया था, तो क्या मतलब नेटवर्क, तो हमारी एक टैगलाइन है, कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब. सो हमारा तो टैगलाइन ही है क्या मतलब. कुछ ना जानना हो तो पॉडकास्ट करो और जान जाओ. ट्रू, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो, जैसे आपसे मिली, आपके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो अभी इंसान सीखता है. इसी तरीके से लाइक whenever I do podcast with different people, some are business persons, तो वो बिजनेस की बातें सिखाते हैं. कोई स्पिरिचुअल है तो वो स्पिरिचुअलिटी की बात सिखाता है. कोई पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स की बातें सिखाता है. तो जो जिस डोमेन में है उस तरीके की नॉलेज आप गेन करते हो. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ. Yeah. Right. And you know, see, podcasting is something which, जहाँ पे आप बिल्कुल रियल हो, जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है. आप कितना बना के बोल लोगे, अगर आपके पास नॉलेज है तो वो नॉलेज आपका बाहर आएगा. यू नो, वीडियोस पे क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट वीडियो पॉडकास्ट, यू कैन स्टिल ड्रेस अप नाइसली, यू कैन स्टिल defocus yourself from exactly what's going on in your mind. But when you talk in audio format, you are speaking what is in your heart. मेरा एक शो है अनबेक्ड, जो म्यूजिक चैनल्स पे चलता है, एंड इट इज अबाउट लव स्टोरीज विच वर लेफ्ट इन बिटवीन. ओके, सो उसमें कभी लास्ट हमने एक एपिसोड किया था, द लिफ्ट. तो आपको भेजूंगी, आप सुनना. बिल्कुल. और वो जो भी वो एपिसोड सुनता है वो मुझे बोलता है कि ये कितना दिल से बोल रही हो, ये सच्ची स्टोरी है क्या. अब यू नो, दैट इज वेयर आई फील दैट आई हैव हिट द, यू नो, बटन, सही जगह पहुंचा. बिकॉज अगर किसी के दिल में ये आ रहा है, ये हुआ होगा इसके साथ जरूर, क्योंकि इतने दिल से बोल रही है, तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब, यू नो. सो देयर इज अ स्टोरी, लाइक जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो गाड़ी में रेडियो चल रही होती है, तो व्हेनेवर इट कम्स लाइक द स्टोरी ऑफ नीलेश मिश्रा की एक स्टोरी आती रहती है हर वक्त, और उनकी जो स्टोरी होती है वो इतनी कनेक्टिंग होती है. मतलब वो
इतने फील के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपके माइंड के सब मतलब ऐसा लगता है ना आपकी नज़रों के सामने वो विजुअलाइज हो रहा है सब कुछ. तो दिस इज अ पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. जब आप बोलते हो तो वो चीज़ एक फॉर्म होना चाहिए कि आप लगे कि विजुअलाइज हो रही है वो चीज़ें, राइट. तो दैट्स व्हाट इज इवन इन स्टोरी लाइक अगर ऑडियो पॉडकास्टिंग भी अगर आप करते हो तो वो उस तरीके से ही होनी चाहिए कि पीपल कैन रिलेट और जिसको सुनने का मन करे, right? So that's what you are doing now. So I'll tell you what, Shambhavi, this comes with time also. As you keep learning, see, it's very easy for an entrepreneur to pat its own back. You know, बहुत आसान होता है, हाँ मैंने ये अचीव कर लिया. लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा स्टोरी टेलर वो होता है जिसके लिए हर पल एक स्टोरी होता है. यू नो, एज एन एंटरप्रेन्योर आई विल टेल यू कि रोज मुझे कुछ नया सीखने का दिल करता है. यू नो, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट. ऐसे नहीं होता कि हाँ बस अब मैंने अचीव कर लिया, मेरे ये नंबर्स ये कंप्लीट हो गए हैं, मैंने इतना सेल्स कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं उसमें और भी कुछ और सीख सकती हूँ. देखो, जो एक ज्ञानी इंसान होगा ना, जिसको एक थोड़ा सा, आई वुड से somebody who's receptive and somebody who's aware about life, उसके लिए हर पल सीखना होता है, लर्निंग होती है. एंड जो ऐसी फीलिंग्स में चलते हैं, आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर देम एवर. एंड आई बिलीव इन दिस टोटली. मुझे लगता है मैं हर चीज़ सीख लूँ. मुझे वो 18 घंटे जो मैं काम करती हूँ ना, मुझे वो भी कम लगते हैं अपने जीवन के. वो 4 घंटे भी जो मैं सोती हूँ, 4-6 घंटे मुझे फोर्सफुली अपने आप को सुलाना पड़ता है कि भाई एनर्जी नहीं बचेगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव ईच मोमेंट ऑफ लर्निंग टू माई लाइफ, यू नो, एंड आई एम टोटली एंजॉइंग इट, ट्रस्ट मी. यू नो, इसमें मुझे लगता है इससे बढ़िया दोस्ती, इससे बढ़िया मज़ा जिंदगी का नहीं है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो. बिल्कुल. और एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा से चाहती थी, क्योंकि खुल के लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते. अपने सक्सेस के बारे में हर कोई बात करता है, सक्सेस स्टोरीज हर कोई सुनाना जानता है. चाहे वो आप पॉडकास्ट पे बात कीजिए, पॉडकास्ट पे भी पीपल वुड लाइक कि मैं अपनी जितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज बता पाऊँ मैं बताऊँ, ठीक है. या फिर आप जो स्टॉक की बात करें, जिस भी तरीके की प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी है, एवरीवन वांट्स टू ओनली टॉक अबाउट देयर सक्सेस, ठीक है. और अगर लेट्स सपोज किसी ने अगर सक्सेस गेन करी भी है तो लोगों को लगता है इसने ओवरनाइट अचीव करी है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी, राइट. अगर आप आज के टाइम पे आज अपने इतने एपिसोड्स भी करे हैं, ठीक है, आपकी इतनी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की आपकी जर्नी रही है काम का भी, तो कहीं ना कहीं फेलियर फेस हुआ होगा, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट फेलियर, राइट. तो आई वुड लाइक you to talk about the failure, what kind of failure which you have faced and how you dealt with it. See, honestly, I'll tell you the reason of my failure first, you know. इसमें कोई शर्म. कब फेल हुए थे आप? So I think I'll tell you, when I moved out of Lucknow and I came to Delhi and I wanted to do my own work, I got into a job, you know, because you are from business families and from we all are from very, very comfortable families, you know. हमारे यहाँ ये सच है कि अभी समय बदल गया. आज से 25 साल पहले बेटियों को 23 साल में 24 साल में शादी कर देती थी कि बड़ी हो गई, इसकी शादी कर दी. हमारे यहाँ तो अभी भी 23-24 साल में शुरू हो जाती है. तो when I got married and I was from a very very well to do, like I am from a very well to do family, तो लगता था हमने बहुत अचीव किया हुआ है. दिमाग में ये एक भूसा भरा रहता था. हालांकि वो उसमें हमारा कोई अचीवमेंट नहीं था. हमारे फादर का अरेंजमेंट, हमारे चाचा का, सबका अचीवमेंट था. फैमिली अचीवमेंट. या फैमिली अचीवमेंट. आई हैव नथिंग टू डू इन इट, राइट. आई एम गेटिंग मैरिड टू अनदर फैमिली. तो दिमाग में द बिगेस्ट रीजन ऑफ माई फेलियर वॉज आई वॉज नॉट रिसेप्टिव. सीखने की खिड़की बंद थी, क्योंकि लगता था हम तो अचीवर हैं, हम तो बड़े अमीर घर से हैं, खानदानी लोग हैं, तो उसको क्वालिफिकेशन समझ लिया था, यू नो. सो दैट फेल्ड मी मेनी टाइम्स फ्रॉम 2000 to 2010. 10 साल लगे मुझे ये समझने में कि भाई कुछ नहीं हो आप. ये जो भी आप थे और जो भी आप ये हीरे जवाहरात पहन रहे हो या ये कपड़े पहन रहे हो, या तो ये पति ला रहे या पिताजी लाए थे. सो यू हैव नथिंग टू डू विद इट. What are you happy about? 10 years. That's a very long time. And I won't say I regret that, but I feel that I could have done more in that time, in those 10 years, you know. 2010, when I actually got the reality check, I felt that, boss, and believe me, I started incubating schools at that time. And I
worked with many. I was looking after sales of many schools, you know, जिसको आजकल लोग एडमिशन काउंसलिंग भी कहते हैं, बट मैं थोड़ा लार्जर स्केल में कर रही थी, इंक्यूबेट कर रही थी. जिनके पास बहुत पैसे होते थे उनको स्कूल बना के देती थी. देन आई रियलाइज्ड कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जितना इन लोगों के पास है जिनको तुम स्कूल बना के दे रहे हो, तो तुम काहे के अचीवर हो. And that was my starting point of my happiness, honestly. And after that, आज 2023 है, and I think it took me so many years to learn, revamp myself, my entire mindset. बहुत ही बेकार mindset था पहले. हालांकि मैं MBA हूँ, फिर भी लगता था पता नहीं क्या अचीव किया हुआ है. एंड हम तो दुनिया चला रहे हैं, दुनिया हमारे से चल रही है, ये फीलिंग होती थी. But today I feel you are nothing. True. You know, and I think that helped me to gain whatever little I have gained today. So that was the reason that I failed many times at lost a lot of relations, lost a lot of good jobs, lost many contacts, many opportunities because of this stupid mindset. And today I don't even want to lose one mind. तब तो मेरे और क्योंकि आप इतने खाली होते हो अपने अंदर कि आप सिर्फ बच सकते हो, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. इतनी खाली थी मैं उस वक्त शांभवी कि तुम मानोगे नहीं कि मेरे सामने से अपॉर्चुनिटी निकलती थी और मैं उसको धिक्कार देती थी क्योंकि समझ नहीं थी. और आज अगर मुझे कहीं लगता है ना कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है तो मैं खुद ही बोल देती हूँ मेरे को ये करना है यार, लेट्स डू दिस. यू लर्न, you know. True. Today I'm sitting with you and honestly I feel I'm learning with you also, you know, like you're half my age almost. You know, तो मुझे लगता है कि why not? इसमें घमंड की या ईगो की क्या बात है? आप बोल दो कि आपको सीखना है. And I think every youngster should learn that. कि to achieve something in life, you have to be very humble, and gratitude goes side by side. This is a mantra I follow. So how you measure the failure or the success? I think if you are receptive and opportunities are knocking your door, you're successful. And if you are losing those opportunities due to your own mindset, you're a loser. This is, ना तो पैसे इसमें आते हैं, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड आता है, ना कोई एजुकेशन आता है. इसमें सिर्फ ये आता है कि अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, you know, and you cannot accept things the way it is and grow with them, learn with them, then you don't have a growth mindset. पैसों से कुछ नहीं होता, पैसा हर कोई कमा लेता, और आजकल कोई गरीब नहीं होता, सभी अमीर होते हैं. Everybody has got good food. Whosoever is on whatever the level they are. No, I think everybody is blessed. True. Honestly, because the systems are like that. There are so many opportunities to earn money. So I feel that if you have a growth mindset, and even at the age of 50, 55, 60, you can just go ahead and learn. You know, honestly, I tell you. So, इसका मेजरमेंट का हाउ आई लर्न, जब कोविड आया तो हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो वी रियलाइज इन द सेकेंड वेव, यू रिमेंबर देयर वर सो मेनी पीपल हु हैड लॉस्ट देयर स्पाउसेस. बहुत गंदा था सेकेंड वेव. तो हमने रियलाइज किया कि बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, बच्चे भी फॉरेन में थे. तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्या मतलब कि अंडर अनुभव, where we reached out to all these senior citizens and हमने उनको podcasting कराई. So they were uncles and aunties of 65 years, 70 years plus. Believe me, so you know, they digged out diaries of their spouses from the cupboards. कि मेरी बीवी तो पोएम लिखती थी. मैं कहा तो अंकल आप उनका पॉडकास्ट बनाओ, सोलो पॉडकास्ट. ट्रस्ट मी, यू नो, देयर आर पीपल हु वर जस्ट डूइंग भजन्स. तो उन्होंने मुझे आके बोला कि बेटा आपने हमें इस जीवन में ना एक नई राह दे दी है. टुडे दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, दे आर डूइंग कॉम्पिटिशंस, they have their own YouTube channels, you know, कि अरे हमें तो जीवन में कुछ राह मिल गई, कि हम बिल्कुल अकेले थे, हम क्या करते थे, पार्क में बैठ जाते थे, अब हम दिन का रोज दिन में एक बार हम स्टोरी लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं. They still do podcasting with us. Amazing. You know, and this was a learning lesson for me, कि आप जीवन में कभी भी सीख सकते हो. इतना कुछ भी नहीं आपने देखा है कि आप सीख चुके हो. Never. True. So this was the turning point in my life also, you know, that I realized. क्योंकि ये चीज़ ना, एक जैसे भी आपने बताया ना कि मतलब आपने अपनी गलतियों से सीखा, although it took you 10 years, right?
बट एटलीस्ट खुल के अपनी ये चीज़ बताइए कि आपकी गलती कहाँ थी. जैसे एक इंसान कहता है ना कि फेलियर, मैं सिर्फ इसलिए फेल हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, मैं इसलिए फेल हुआ कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता था. बट आपने वो सही चीज़ पकड़ी है जो माइंडसेट है. इंसान फेल सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से होता है, राइट. दैट इज समथिंग जो आपको 10 साल लगे सीखने में, मैंने अभी पिछले 5 मिनट में आपसे बात करके सीखी है. नो, दैट्स रियलिटी. तो आई मेक श्योर कि मैं आगे भी लोगों को ये चीज़ जितना ज़्यादा लोगों को बता पाऊँ कि नहीं, अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. डजेंट मैटर वेयर यू आर. माई फादर ऑलवेज सेज, मैं जब बहुत छोटी थी तब से मेरे पापा ये चीज़ सिखाते थे कि अगर आपको कभी किसी पॉइंट पर ऐसा लगने लग जाए ना कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ऊपर हो, ठीक है, तो अपने से हमेशा ऊपर वालों को देखो, क्योंकि डजेंट मैटर वेयर यू आर, कोई ना कोई आपसे आगे ज़रूर है, राइट. एंड जब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होने लग जाए ना कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, सब मेरे से अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उनको देखो जो आपसे नीचे है, राइट. तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑटोमेटिक आपके पास आने लग जाएगा. लेट्स सपोज अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो वी विल गेट बैक टू योर कॉन्फिडेंस लेवल. अगर आप बहुत डिमोटिवेटेड और अंडर कॉन्फिडेंट हो, देन ऑल्सो इफ यू विल थिंक दैट वे, तो आप ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट कमिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल, राइट. तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम माई फादर. एंड अभी भी कहीं ना कहीं मतलब मैं उस चीज़ को बहुत डीपली मानती हूँ कि अगर मुझे खुद को लगता है कभी कि अच्छा ज़्यादा तो मतलब अच्छा कर रहे हैं हम, तो लगता है नहीं, हमारे एज के लोग हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं. कभी लगता है कि होता है, क्योंकि लाइफ में ना मतलब ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं जब कभी डिमोटिवेटेड भी होते हैं, तो लगता है कि नहीं ठीक है, फिर दूसरों को देखते हैं चलो ठीक है, तो एक रहता है, बना रहता है कि नहीं ठीक है. See, I'll tell you, demotivation का एक ही solution है, and that is consistency. If you are demotivated, you be more consistent. ट्रू. लोग क्या करते हैं डिमोटिवेशन में, बैठ जाते हैं. बैठना नहीं है, रुक जाओ, रिलैक्स कर लो, आइसक्रीम खा लो, थोड़े दिन सो जाओ. एक दिन का ब्रेक ही ले लो. एक दिन क्या, 10 दिन का लो, घूमने चले जाओ. मैं ऐसा करती हूँ. लोगों को लगता है वी आर डूइंग वेरी गुड, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि सब लोग हमें ब्लेस करते हैं हमेशा. लेकिन मैं खुद से ना, क्योंकि हर इंसान को अपना स्वभाव जरूर पता होता है, वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और यू Or डोंट not. वांट टू एक्सेप्ट इट, बट यू नो योर एग्जैक्ट सेल्फ, व्हाट यू आर. ऑनेस्टली एवरीबडी नोज द ट्रू सेल्फ, यू नो, कि हम एग्जैक्टली कैसे हैं. मुझे भी पता है कि मैं कैसी हूँ. आई लाइक टू डू एवरीथिंग, यू नो. I want to do bits of everything while I'm alive abhi. So I learn classical music, I learn bhavuk dance, I do my online yoga. I'm also a socialite. I like to do a lot of social partying, and I want to look good also, and I want to work also, you know, and do good work. And you're doing everything. Yeah, because I feel that everybody can. And you're managing your family as well. Yes, family and Shambhavi, see, हर इंसान में कैपेसिटी होती है कि उसको 24 घंटे क्यों मिले, है ना. कभी सोचो, हर इंसान को मिले 24 घंटे ही मिले, है ना. 24 घंटे में अब ये आपकी चॉइस है कि आप 2 घंटा काम करो, आप 4 घंटा करो, आप बाकी के घंटे कैसे बिताओ. तो मैं बहुत बड़े ससुराल में भी हूँ, उसकी भी अपनी सोशल लाइफ चलती रहती है. मायका भी बहुत बड़ा है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़ी है. तो देन एवरीथिंग कम्स डाउन टू मैनेजिंग. इफ यू आर अ गुड सेल्स पर्सन, you have to be a good the manager biggest also. question is कि as you said कि आपकी फैमिली दोनों साइड की ही बहुत बड़ी है. other than that you have definitely a good business network, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल फ्रेंड्स हैं. फिर इसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ है डांस को लेकर, अलग अलग फॉर्म ऑफ डांसेस, योगा, हर एक सिंगल चीज़ को लेके, एंड इन बिटवीन यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल, राइट. तो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ यू आर मैनेजिंग द टाइम. So, see, everything comes down to how you manage your time. जो आप मुझसे पूछो कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ, तो क्योंकि मैं एक अच्छी सेल्स पर्सन हूँ और एक अच्छी मैनेजर हूँ. सी, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4:30. आई डू माई रियाज, देन आई डू माई योगा. उसके बाद में मेरे पास जो अर्ली मॉर्निंग जो मेरी इंटरनेशनल कॉल्स होती है, मैं सुबह सुबह वो करती हूँ. एंड उसके बाद आई मेक श्योर कि मैं कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, मैं बैठती
सुबह की जो 6 बजे वाली वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पीती हूँ. एंड देन आई हैव अ स्मॉल लविंग पेट एट होम, जो बच्चा है हमारा वो हमारे साथ होता है, हम उसके साथ खेलते हैं. देन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. तो मेरे को सुबह 15 मिनट अपने प्लांट्स, सारे प्लांट जितने भी मेरे पास मेरे बच्चे हैं प्लांट्स, उनके साथ मैं बात करती हूँ. एंड देन आई डू लिटिल गार्डनिंग बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हेल्प मी टू फाइट द डे, honestly. After that I get to work. I have hundreds of files to follow up. I have hundreds of meetings to do during the day. And then there are social activities also. कभी कुछ ससुराल में कुछ हो गया है, कभी मायके में किसी का बच्चा हो गया है, कभी कुछ है, तो वो 1-1.5 घंटा मेरे को अपना बफर रखना पड़ता है. Then there is a set timetable that I follow. And मेरा 15 दिन का शेड्यूल टाइट बना होता है. I have my planners. And there is an excellent team behind me who helps me manage my time also. There are students, they've been interns with us who have been a core holding of our team. And they plan the things for me. मेरी कहीं talks होती हैं, मेरे खुद के बुक माई शो पे जो वर्कशॉप्स होती हैं, वो सारा कुछ प्लानिंग हमारी टीम के साथ बैठ के हफ्ते के स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं. जो मेरे खुद के सेल्फ रिलीजेस हैं वो मैं संडे को बैठ के करती हूँ. तो आई थिंक एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ यू मैनेज योर कैलेंडर. जो लोग अपने कैलेंडर को मैनेज नहीं करते हैं वो हमेशा टाइम का वेस्ट करते हैं. टाइम ऐसी चीज ही नहीं है जो वेस्ट करी जाए. टाइम इज समथिंग विच नीड्स टू बी एक्चुअली ईटन अप. आप समय को खाओ ना, आप समय को वेस्ट क्यों करते हो? और समय वेस्ट कैसे करते हैं लोग? फालतू की गॉसिपिंग करके, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करके. कभी भी एक्सरसाइजिंग से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप में जितनी भी सारी ये स्ट्रीम्स हैं, इसमें कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सीख रहे होते हो. टाइम वेस्ट होता है जब आप फालतू का सोच रहे होते हो, आप थॉट प्रोसेस में होते हो बिना वजह के. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग वेल योर कैलेंडर. एंड इफ यू गेट अ नैक फॉर इट, सीखना पड़ता है ये. देखो, जब आप सीख जाते हो तो टाइम वेस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है. ट्रू. तो एज यू आर अ वुमन, मदर ऑफ अ चाइल्ड who is now grown up, right? तो इतने टाइम हो गया आपकी शादी को, and you are quite open up on your social media also, in reels also. There are a lot of things which you do, right? तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड की तरफ से कोई मतलब इस तरीके की कोई बाउंडेशन आई हो, या फिर आपके बच्चे ने आपको बोला हो कि मम्मा क्या करते रहते हो आप, इस तरीके की चीज़ें कभी आती है? सो शांभवी, जिस पहले दिन मेरी शादी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड बहुत ही मैच्योर और बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही समझदार पिता और हस्बैंड हैं. और उनकी वजह से ही हैं हम लोग, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि उनकी वजह से ही हम हैं जो हैं. एंड आप मानोगे नहीं, पहले दिन जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात बोली थी. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, और मेल और फीमेल आर फेसिंग द प्रॉब्लम. जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर घरों में क्या होता है, मेल और फीमेल एक दूसरे को फेस करने लगते हैं. ये तुम्हारी वजह से हुआ, पॉइंट आउट करते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं. हमारे घर में हमने पहले दिन से सीखा और अपने बच्चे को भी सिखाया है कि बेटा प्रॉब्लम ये है, हम सब इसको एक साथ देख रहे हैं. एक अच्छे रिश्ते की ना, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो. आप मानोगे नहीं शांभवी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ कुछ साल पहले, विच वॉज बाय गॉड्स ग्रेस, सब ठीक है. हमने आज तक उसको नहीं बोला कि तूने ये गलती की थी. आई डोंट बिलीव इन दिस. हमने उसको सारा सपोर्ट किया, हमने उसको धीरे धीरे समय पे बताया कि ये प्रिकॉशंस लो, ऐसे गाड़ी चलाओ, ये गलती मत करो. लेकिन हमने कभी भी उसको ऐसे पोक नहीं किया है कि तुम्हारी वजह से हो गया. घरों में कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं. हमने पहले दिन ही ये प्रॉमिस किया हुआ है, टचवुड, हमारे घर में है कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम इकट्ठा हैं, हम प्रॉब्लम के साथ नहीं हो जाएंगे. नो मैं और तुम इज देयर, बट हम नो थर्ड पार्टी कैन कम बिटवीन आवर रिलेशनशिप. एंड ये चीज आपको बनानी पड़ती है. सो जैसे मैं अभी हूँ, और मैं, आपने बोला आई एम वेरी ओपन इन सोशल मीडिया एंड आई हैव माई रील्स एंड आई हैव माई वीडियोज एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट मेनी थिंग्स. तो जहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर इनकी बात सुनती हूँ
अपने बच्चे की भी, because there is a new blood and they know the real thing, and you know there is the technology is changing every moment and you have to you know keep yourself updated to it. So जहाँ पे होता है तो मैं ज़रूर सीखती हूँ और मैं अपना ध्यान देती हूँ, और जो चीज़ अच्छी होती तो वो बहुत तारीफ भी करते हैं कि ये बहुत ही सुंदर बना है, बहुत अच्छा बना है, मैं लिखती भी हूँ. So ऐसा कुछ नहीं है, there is no bounding. घर की मर्यादाएं, रिश्तों की मर्यादाएं टाइम पे टाइम अपडेट करते रहते हैं हम लोग, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होती है. ट्रू. तो जिस तरीके से भी आपने बताया, सब कुछ एक्सप्लेन करा कि हाउ अ वुमन शुड और इवन अ मैन शुड स्पेंड देयर टाइम और टू गिव देयर टाइम टू देयर स्पाउस, राइट? तो अभी भी काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इवन अब मुझे नहीं लगता कि जो पहले के टाइम पे होता था कि वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब दबाया जाता था या इस तरीके की जो चीज़ें होती थी कि उनको घर में रखा जाता था, ढक ढका के रखा जाता था, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं उतनी नहीं है, बहुत कम हो गई. मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा किसी पिछड़े हुए गाँव में जाते हैं या उस तरीके की जगह पे जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, बट अब कहीं ना कहीं एवरीवन इज़ वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग, राइट? बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन्स हु फील दैट दे आर अंडर वैल्यूड और अंडर रिस्पेक्टेड, राइट? तो व्हाई इट हैपेंस? मुझे हमेशा ये बात लगती है दैट योर रिस्पेक्ट इज बिल्ड बाय यू. यू नो, आपकी इज्जत इतनी कमज़ोर नहीं है कि अभी सोफे पे रखी गई तो बढ़ गई, ज़मीन पे रखी गई तो घट गई. मतलब इज्जत है क्या है? You know, so I honestly feel that if you respect yourself and you exactly know, see, most of the human beings, you know, talk about men and women, they don't know what respect is. They know what is ego. And they feel that क्योंकि मैं egoistic हूँ तो मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए. होगा ही नहीं. Respect is full of humble always. You know, respect की जो Your ego can't bring the respect for you. No, you can't demand it. True. And even if you don't want to demand it, it's not necessary you will get it. And if you're not getting it, it's okay. What is the big shit about it? There is no big shit about it. कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए. भाई ऐसा कर्म करो कि इज्जत खुद आए चलकर. इज्जत को इनवाइट करना पड़ता है. You know, you can't just say कि मुझे इज्जत दो. क्यों? आप कौन हो? You know, आपने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में? और अगर आपने किया होगा वाकई में और आप हम्बल हो गए तो आपको इज्जत खुद मिलती है. So it's, you know, everything is very I think this is the law of nature यार. मतलब आप उसको फाइट नहीं कर सकते हो. और इज्जत क्या होती है यार? मतलब पहले खुद अपनी आंखों में देखो तुम्हारी. You know, it doesn't really matter what people think about you. All that matters is what I think about myself or you think about yourself. You know, and if you are on a growth mindset and you're learning every day and you're happy and there is food, I think you've achieved a lot in life. True. Yeah. तो आप भी एक पॉडकास्टर हो, मैंने भी पॉडकास्ट शुरू किया करना. ऑल्दो वी नो ईच अदर बिफोर आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब से जानते हैं, राइट? तो तब भी आप मुझसे मिले और अब इतने टाइम बाद भी हम मिल रहे हैं, राइट? तो व्हाट डू यू फील अबाउट मी? So, Shambhavi, I am super proud of what you are doing. And the day I saw your page, you know, and it came across me, I was like, wow, she's doing so well. I mean, and I remember when you were in college and how we did your feature and how we did your podcast on the Zoom. And I used to feel, and that time you were so focused about your work, and I used to feel कि ये लड़की तो बहुत दूर तक जाएगी, you know, she's doing great. And never did I ever feel, you know, that कि तुम कोई काम अच्छा नहीं कर रही हो. मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, honestly. और अभी भी when I saw this page, you know, and I thought that she's doing so good, and you know, your entire setup and the way you are meeting people, and I really want to congratulate you that शायद मैंने जो 5 साल में जर्नी की है वो तुमने शायद 1 साल में उसको करा है. And I think this is commendable. You know, I don't feel that you're not experienced. I don't feel that you're not positive. I don't feel that you're not learned. You know, कहीं से भी ये वाइब आती नहीं है. And I'm really proud of you. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही बच्चा कुछ अच्छा करके बाहर आ रहा है. You know, and I feel so proud about it that I can't. Because the first video which I did was with you only, right? Yeah. So that was my first experience. And after that only I realized कि नहीं मुझे करना है. And you won't believe, after that I picked up a name. 2019 में हमने किया था शूट. And at that time only I picked up a name. मैंने डोमेन रजिस्टर किया, सब कुछ बनाया, बट आई कुडंट स्टार्ट दैट. कॉलेज में थी, ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी कॉलेज में रह के भी.
तो टाइमिंग नहीं होता उतना, तो उस वजह से हमने उस टाइम पे शुरू नहीं किया. बट आफ्टर like shifting from there, completing my education, started my marketing agency in Noida, then I thought, let's start it now. No, it's wonderful, and I think you'll go a long way because you exactly have a knack for it now, and you're doing it very well. And I really want to congratulate your entire team. Thank you. Doing great work, and I wish you have all the blessings of this world. Thank you so much. Yeah. So it was amazing talking to you, and I'm really thankful that you came to our podcast today. Thank you so much. Thank you so much.